السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھنے والے کیمیائی تعاملات اور مساوات اس سبق کے تعلق سے، جیسے کہ آپ لوگ نے پچھلی ویڈیو میں کئی سارے ویڈیو میں نے اسباق کو جو ہے تو ایکسپلین کیا ہوں۔ اب اس سبق میں آپ کو سوالات کے جوابات کس طرح سے لکھنا ہے، امتحانوں میں کس طرح سے تیاری کرنا ہے، اس کے تعلق سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بچے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو آئیے سبق کی شروعات کرتے ہیں ہم۔ اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب تقسید اور تحویل بیک وقت ہوتی ہے تو اس کو کون سا عمل کہتے ہیں، ایک مثال کے ساتھ واضح کریں۔ تو تقسید اور تحویل، تقسید ایسا عمل ہوتا ہے جس کے اندر آکسیجن لی جاتی ہے اور ہائیڈروجن چھوڑی جاتی ہے، اسے تقسید کا عمل کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ FeCl3 ٹن کلورائڈ کے ساتھ عمل کر رہا ہے، تو جس کے وجہ سے یہاں پر جو FeCl3 کا ایک Cl ہے وہ Cl جز جا کر SnCl2 کے ساتھ جا کر جڑ رہا ہے، یا دو Cl جز جا کے جڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لوہا ہے تو لوہے کی تحویل ہو رہی ہے جبکہ ٹن کی تقسید ہو رہی ہے۔ تو اس مثال کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس عمل کے دوران تقسید اور تحویل دونوں اجزاء کے درمیان ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے دیکھا یہاں پر کہ Fe یہاں پر اس کے پاس 3 Cl موجود ہے، یہ ایک Cl یہاں سے ہٹ کر اس SnCl2 کے پاس جا کر جڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ SnCl4 میں تبدیل ہو رہا ہے، اور SnCl4 میں تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس SnCl4 کی تقسید ہو چکی ہے اور Fe میں سے منفی عدد یہاں سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تحویل ہو رہی ہے۔ تو اس عمل کے دوران تقسید اور تحویل ایک ساتھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کو تقسیدی تحویلی عمل کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا پھر سے ایک بار کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے۔ مجھ میں جو خامیاں، میرے ویڈیو میں جو خامیاں نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ خامیاں بھی بتا سکتے ہیں آپ۔ آئیے تو آگے اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ یہ کیمیائی عمل کی شرح یعنی ہائیڈروجن پروکسائڈ کے تعامل کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی تعامل ہوتا ہے تو اس میں عاملیت کی شرح چند اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے عاملیت اور دوسری چیز کہ ہٹاؤ نہیں بلکہ ٹیمپریچر اور جوہر کی سائز وغیرہ وغیرہ چیزوں پر منحصر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہائیڈروجن پروکسائڈ H2O2 نظر آ رہا ہے آپ کو۔ H2O2 کے تقسید کی وجہ سے H2O اور IO تیار ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو جو ہے تو کیمیائی تعاملات کے دوران آیوڈین کیمیائی تعاملات کے شرح کو جو ہے تو بڑھا رہا ہے یا کم کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہائیڈروجن پروکسائڈ میں کیمیائی تعامل کی شرح کو بڑھانے کے لیے آیوڈین کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی کہ عامل کسے کہا جاتا ہے اور حاصل کسے کہا جاتا ہے۔ تو عامل اس اشیاء کو، اس جز کو کہا جاتا ہے جو تعامل میں حصہ لیتی ہے، اسے عامل کہتے ہیں، جبکہ جو کیمیائی تعاملات کے بعد حاصل ہوتی ہے اسے حاصل اشیاء کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے دودھ کے اندر نیمبو نچوڑ دیے تو نیمبو نچوڑنے کے بعد دودھ سے پھٹا ہوا دودھ تیار ہوگا، یعنی پانی اور ملک تیار ہوگا۔ تو اس طرح کے تعامل کو ہم لوگ کہتے ہیں عامل اور حاصل کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ NaCl 2Na اور Cl دونوں آپس میں عمل کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر سوڈیم ایک جوہر ہے جو عمل کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کلورین جوہر عمل کر رہا ہے۔ تو سوڈیم اور کلورین جوہر کے عمل کرنے کی وجہ سے نمک تیار ہو رہا ہے یہاں پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ
दूसरा कीमियाई तामुल यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। आमिल और हासिल की मिसाल देने वाले की इस्तिलाह की वजाहत कीजिए। मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आमिल किसे कहा जाता है और हासिल किसे कहा जाता है। जैसे आप इस शक्ल में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अमल कर रहा है। हाइड्रोजन के साथ अमल करने की वजह से यहाँ पर अमोनिया तैयार हो रहा है। अमोनिया तैयार होने का जो अमल है, इसमें आमिल एक जानिब है और हासिल एक जानिब है। इसे लेफ़्ट हैंड साइड कह सकते हैं आप और इसे राइट हैंड साइड कह सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक सवाल पूछा गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले से रद्द अमल के अक़साम की वजाहत करें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन लेना या ख़ारिज करना, हाइड्रोजन लेना या ख़ारिज करना, इस अमल के ताल्लुक़ से वजाहत करना है आपको। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले से कीमियाई तामुलात की अहम 3 किस्में हैं। पहला बताया जा रहा इजाफ़ी या तरकीबी अमल। इजाफ़ी अमल, अब यहाँ पर 2 जौहर आपको नज़र आ रहे हैं, ए और बी, दोनों भी आपस में मिल गए तो इस तामुल को हम लोग कहेंगे इजाफ़ी तामुल, या फिर जिसे तरकीबी अमल भी हम लोग कहते हैं। अब दूसरा तामुल यहाँ पर ज़ाहिर किया जा रहा है कि तहवीली अमल। तहवीली अमल ऐसा अमल होता है जिसके अंदर से ऑक्सीजन खारिज होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Fe के पास से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन के पास जाकर जुड़ रही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर तहवील हो रही है। किसकी? Fe की तहलील हो रही है, जबकि कार्बन की तखसीद हो रही है, क्योंकि कार्बन के पास ऑक्सीजन शामिल हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर सोडियम और फ्लोरीन, सोडियम फ्लोराइड का महलूल बनना, इस अमल को ज़ाहिर किया गया है। तो इस अमल के दौरान जो सोडियम है, सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास जाकर जमा हो रहा है, जिससे हम ये ऐसा कह सकते हैं कि भाई सोडियम मुस्बत बारदार हो जाता है और फ्लोरीन मनफी बारदार हो जाता है। और इस अमल को भी हम लोग तखसीद और तहवील कह सकते हैं, जिसमें सोडियम की तहवील हो रही है और फ्लोरीन की तखसीद हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तकसीदी और तहवीली अमल को एक और मिसाल के ज़रिए यहाँ पर दिखाया गया है कि तकसीद में ऑक्सीजन का खारिज होना और तहवील में ऑक्सीजन खारिज करना होता है। उस अमल को हम लोग तकसीदी तहवीली अमल कहते हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें तो आप लोगों ने पहले भी देख चुके हैं। अब चंद मिसालें भी दी हुई हैं यहाँ पर। कॉपर ऑक्साइड की मिसाल दी हुई है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का अमल होता है तो कॉपर प्लस पानी तैयार होता है। इस तरह के अमल में हाइड्रोजन की तकसीद हो रही है और कॉपर की तहवील हो रही है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 अमल में फ़र्क की वजाहत करें, यानी पानी को, यहाँ पर एक चीज़ रॉन्ग हो चुकी है। पानी में अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कीमियाई तामुल की मसावत की ज़ाहिर करना है आपको, तो किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है देखिए। इसमें फ़र्क भी वाज़े करना है आपको और इसके साथ साथ इसकी वजाहत भी करना है। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिलाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप लोग जब पानी मिला लेते हैं तो पानी मिलाने के बाद यहाँ से हीट यानी हरारत खारिज होती है। आप लोगों ने ये लेबॉर्ट्री में कीमियाई अमल देखे होंगे। और यहाँ पर रंग जो है तो दूधिया रंग का हो जाता है या फिर सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो हिलाने के बाद इसका रंग तब्दील होकर बेरंग हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग पुराने ज़माने में चूने में पानी मिलाते थे तो उसके अंदर से भाप निकलती थी। उसी तरह का ये अमल होता है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैमाने पर हरारत खारिज होती है। ये भी कीमियाई तामुल की एक किस्म है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और इसमें 2 आमिल मिलकर एक हासिल तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये एक तरकीबी अमल भी है और साथ ही साथ हरारत खारिज करने वाला अमल भी है ये। उसी के साथ साथ जब हम कैल्शियम ऑक्साइड तैयार होता है तो इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी खारिज होती है यहाँ पर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गुजरता है तो ये दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है। जो बेरंग पानी होता है वो बेरंग पानी दोबारा से
कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर इस शक्ल के ज़रिए आप देख सकते हैं, जैसे हिलाया जा रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रहा है तो इसका रंग इस तरह से दूधिया होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो है तो हरारत खारिज करने वाला अमल और हरारत जज़्ब करने वाले अमल के ताल्लुक़ से हम लोग पढ़ेंगे। हरारत खारिज करने वाला अमल ऐसा अमल होता है जिसके दौरान जब हम दो आमिल को मिलाते हैं तो उस दौरान हरारत खारिज होती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप शक्ल में कि शक्ल में आपको नज़र आ रहा है कि जब पानी के अंदर कोई एक जुज़ बताया गया कि उसे मिलाया जा रहा तो बहुत ज़्यादा पैमाने पर हरारत खारिज हो रही है, जबकि दूसरी शक्ल में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हरारत जज़्ब की जा रही है, किसी तामुल को कराने के लिए हरारत दी जा रही है। जैसे हम लोग चाय बनाने के लिए चाय को हीट देते हैं, उसी तरह एक नया मिसाल बताई गई तरकीबी अमल। तरकीबी अमल एक ऐसा अमल है जिसके दौरान दो आमिल मिलकर एक हासिल तैयार करते हैं, उसे तरकीबी अमल कहते हैं। यहाँ पर ए और बी दिखाया गया है, तो ए और बी जब मिल जाएंगे ए बी तैयार करेंगे, तो ए बी जो तैयार होगा उसे हम लोग तरकीबी अमल कहेंगे। कि जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अमल हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ एक हासिल तैयार हो रहा है, दो आमिल मिलकर एक हासिल तैयार करते हैं, उस अमल को हम लोग तरकीबी अमल कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, माजरत चाहूँगा आपसे। आगे देखते हैं मुतवाज़ुन मसावात की कीमियाई अमल की मुतवाज़ुन मसावात कीमियाई अमल का एक मसावात है जिसमें हर अंसुर के लिए एटमों की तादाद और कुल आमिल और हासिल एक जैसे होते हैं। दूसरे अल्फाज में दोनों अतराफ़ में मुतवाज़ुन मसावात कहलाते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई कि जब हम लोग आमिल यानी यहाँ पर जो है तो आयरन ऑक्साइड दिया गया है और कार्बन के साथ तामुल किया जा रहा है, तो आयरन और 4 आयरन और 3 कार्बन डाइऑक्साइड जौहर तैयार हो रहे हैं। तो इसमें कार्बन, आयरन और ऑक्सीजन इन तीनों की तादाद आमिल और हासिल में यकसा हो, मसावी हो, तो उस अमल को हम लोग कौन सा अमल कहते हैं? मुतवाज़ुन कीमियाई मसावात कहते हैं। इसमें दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों एटमों की तादाद यकसा होना ज़रूरी होता है। अगर ये तादाद यकसा ना हो तो इन अनासिर को ज़रब देने पर इनको मुतवाज़ुन किया जा सकता है, इसे ही मुतवाज़ुन कीमियाई मसावात कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हटाव का तामुल। हटाव का तामुल एक ऐसा तामुल है जिसके अंदर एक जौहर या सालमा अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे जौहर या सालमे से जाकर जुड़ जाता है, तो उसे हटाव का तामुल कहते हैं। जैसे मिसाल में यहाँ पर दिखाया गया है कि कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ तामुल किया गया, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट तैयार हुआ, FeSO4 तैयार हुआ, जबकि Fe अकेला था और इससे SO4 जाकर जुड़ गया, तो इस अमल को हम लोग हटाव कहेंगे। एक जौहर यहाँ से हटकर यहाँ पर चला गया, जिसकी वजह से इस अमल को हटाव का तामुल कहा गया। अच्छा, उसके बाद जो है तो चूना कार्बोनेट से बना होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमल ज़ाहिर करता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो एक सफ़ेद ख़तरा है। फिर चूने के पानी दूधिया रंग में बदल जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की तश्कील होती है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाले टेस्ट ट्यूब में मौजूद है। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो इस तरह का दूधिया रंग में तब्दील हो जा रहा है। इस अमल को यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि शाहाबादी टाइल्स में और उसके पाउडर में क्या फ़र्क है, कि ये शाहाबादी टाइल्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के महलूल में आम तौर से जल्दी से घुल नहीं पाती, जबकि उसका जो पाउडर है वो आसानी से घुल जाता है या मिक्स हो जाता है। तो इसकी वजह यहाँ पर ये बताई गई कि जब पाउडर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमल करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमल करने की वजह से ये बासानी छोटे पार्टिकल होने की वजह से, छोटी जसामत के जौहर होने की वजह से
یہ جلدی سے عمل کر لیتا ہے، جبکہ شاہ آبادی ٹائلس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایگزام میں اسی طرح سے لکھنا ہے کہ جب جوہر کی جسامت بڑھ جاتی ہے تو اس وقت عاملیت کی شرح میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو شاہ آبادی ٹائلس ہوتی ہے وہ آسانی سے عمل نہیں کر پاتی۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جب پانی سلفیورک ایسڈ میں ملایا جا رہا ہے تو بہت زیادہ پیمانے پر حرارت خارج ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا جاتا ہے؟ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں شکل میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا جا رہا ہے اور اسے ہلانے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر سلفیورک ایسڈ جو ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ حرارت خارج ہوتی ہے، اور حرارت زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس بیکر کا پھوٹنے کی بھی خاصیت ہوتی ہے۔ یہ پھوٹ سکتا ہے اگر زیادہ پیمانے میں ہم سلفیورک ایسڈ ڈال دیں یہاں پر، تو اس کی وجہ سے یہ پھوٹ سکتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا سلفیورک ایسڈ ڈال کر اسے ہلانا پڑتا ہے مسلسل، جس کی وجہ سے یہ پھوٹ نہیں پاتا ہے اور عمل جاری رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر سرانڈ یا پھر جسے رینسیڈیٹی کہا جاتا ہے، تو رینسیڈیٹی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جب آئل یا گھی کو ہم زیادہ عرصے تک کھلا رکھ دیتے ہیں تو اس میں آکسیڈیشن ہوتا ہے۔ آکسیڈیشن کی وجہ سے، تکسید کی وجہ سے یہ آئل یا تیل یا گھی عام طور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو خراب ہونے سے روکنے کے لیے اسے لوہے یا ٹین کے ڈبے میں ڈھانک کر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سڑن نہیں ہو پاتی اور ذائقہ یا بدبو اس میں محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد متوازن مساوات کرنے کا طریقہ یہاں پر شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ 2 ہائیڈروجن اور 2 آکسیجن عمل کر رہے ہیں اور 2H2O مالیکیول تیار کر رہے ہیں۔ تو اس شکل میں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے جسے بیلنس کہا گیا، جسے متوازن کہا گیا۔ دونوں ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا وزن یکساں ہے، یعنی دونوں میں جوہروں کی تعداد یکساں ہوں گی۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ متوازن کیمیائی مساوات ایسی مساوات ہوتی ہے جس میں عامل اور حاصل دونوں ہی کے اندر جوہروں کی تعداد یکساں ہوتی ہے، اسے ہم لوگ متوازن کیمیائی مساوات کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا سا کنسیپٹ ہے بچوں، چھوٹے سے میں نے اسے تھوڑا شارٹ سمجھانے کی کوشش کیا ہوں آپ کو۔ جب یہاں پر جو ہے تو آئرن سلفیٹ کا عمل ہوتا ہے، یہاں پر دوسرا کیمیائی مساوات جو ہے تو ظاہر کیا میں نے، Ag2Ag2O، یہاں پر 4Ag O2 تیار ہو رہا ہے۔ اس عمل میں سوڈیم سلور بدل رہا ہے، یعنی سلور آکسائڈ سے آکسیجن کا ہٹاؤ ہو رہا ہے، مادہ آکسیجن کے خاتمے کی تحلیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا رانگ ہو گیا۔ متوازن مساوات کرنے کا طریقہ، یہاں پر سلفیورک ایسڈ کو پانی میں ملایا گیا تو سلفیورک ایسڈ تیار ہوتا ہے۔ اس میں جوہروں کی تعداد دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہائیڈروجن کی تعداد 4 ہے اور سلفر کی تعداد 2 ہے اور آکسیجن کی تعداد 8 ہے۔ تو اسے مرحلہ وار متوازن کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ مرحلہ وار مصنوعات کے پہلے میں ہر ایٹم کی تعداد گننا ہے آپ کو، پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دوسرے سٹیپ میں حاصل کے جو ہے تو تعداد گننا ہے۔ عامل اور حاصل کی تعداد یکساں نہ ہو تو اسے ضرب لگانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر اگر سلفر اور ہائیڈروجن کی تعداد یکساں نہ ہو تو ان کی قیمتوں کو ضرب لگانے پر ہمیں متوازن کیمیائی مساوات حاصل ہوتی ہے۔ اس مساوات میں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ کا ہائیڈروجن کے ساتھ یہ آپ کی کتاب میں بھی دیا ہوا ہے، آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر عامل میں جو ہے تو ہائیڈروجن، سلفر اور آکسیجن کی تعداد کتنی ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ ہائیڈروجن کی تعداد 2 ہے، سلفر کی تعداد 2 ہے اور آکسیجن کی تعداد 2 نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اسی طرح
हासिल में जो है तो सल्फ़र की तादाद 1 है, ऑक्सीजन की तादाद 2 है। तो इससे ये समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पर सल्फ़र की तादाद यकसा नहीं है और ये बैलेंस नहीं है, मुतवाज़ुन नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर तीसरे स्टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में क्या बताया गया है, इसके बाद एक मसावात में हर एटम की तादाद मुतवाज़ुन करके आमिल और हासिल की तरफ अदद की कीमत के साथ H2S को रिएक्टेंट और रिएक्टेंट साइड में 2 यानी H2S को 2 से ज़रब देना है और हासिल में S को 3 से ज़रब लगाए तो हमको आमिल और हासिल की 2 से ज़रब देने पर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत हासिल होती है। जैसे यहाँ पर H2S लिया गया था तो यहाँ पर देखिए आप कि H2S को 2 से ज़रब दिया गया और सल्फ़र को 3 से ज़रब दिया गया, तो हमें इस तरह से मुतवाज़ुन मसावत हासिल होती है, आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह दूसरी मसावत भी दी हुई यहाँ पर Ag और HCl की दोनों का अमल होता है तो AgCl और H2 तैयार होता है। तो यहाँ पर आमिल और हासिल में तादाद ज़ाहिर की गई है। उसके बाद उसे बैलेंस करने के लिए ज़रब दिया गया है। जैसे आमिल में 2 से ज़रब दिया गया, यहाँ पर भी 2 से ज़रब दिया गया, हासिल में 2, इस तरह से यहाँ पर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावत हासिल होती है हमें। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमल दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में देख सकते हैं आप कि किस तरह से आमिल और हासिल को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। कीमियाई मसावत को पहचानिए, तो यहाँ पर आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन सी कीमियाई मसावत है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया गया तो हरारत खारिज हो रही है, तो इस अमल को हम लोग हरारत खारिज करने वाला अमल कहते हैं। उसी तरह दूसरा कीमियाई तामुल पोटेशियम क्लोराइड हासिल हो रहा है KCl और O2, तो ये हरारत खारिज करने वाला अमल की मिसाल है। उसके बाद तीसरा अमल जो है तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया गया तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हरारत खारिज होती है, तो हरारत खारिज करने वाला अमल है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया गया तो इसे हरारत दरकार हो रही है, इसलिए ये हरारत जज़्ब करने वाला तामुल है, ऐसा कह सकते हैं। आइए तो लास्ट हमारा सवाल है कि यहाँ पर जो है तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करना सही जोड़ी लगाना है। आपको सही जोड़ी लगाने के लिए यहाँ पर BaCl2 दिया गया है ZnSO4 के साथ, तो BaCl2 ZnSO4 के साथ अमल करेंगे तो BaSO4 तैयार होना चाहिए। देखिए यहाँ से हटाव का अमल होगा तो हटाव के अमल की वजह से ये SO4 यहाँ पर चला जाएगा तो BaSO4 प्लस ZnCl2 तैयार होता है। तो ये दोहरे हटाव के अमल की मिसाल है। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, दोहरे हटाव जिसे कहा जाता है। उसी तरह AgCl से Ag प्लस Cl2 तैयार हो रहा है। Ag प्लस Cl2 यहाँ पर मुस्बत का निशान है, दोनों अलग अलग जौहर तैयार हो रहे हैं, तो इस अमल को डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी तहलीली अमल कहा जाता है। उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर कॉपर सल्फेट का अमल कराया गया Fe के साथ, तो यहाँ पर हटाव का अमल हो रहा है यानी जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिलाया गया, H2CO3 कार्बनिक एसिड तैयार हुआ और इस अमल को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी तरकीबी अमल कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इस पर।